Okay, good morning friends. Today we are especially going to discuss something about the cube root. Okay, especially what happened, there are some of the 5-digit terms where it's become very difficult to find out the cube root of that number. So especially we are going to talk about the shortcut tricks, how we are going to find out the cube root of any 5-digit number, because it's very easy to find the cube root from 1 to 10. So you need to remember the cube root from 1 to 10, then only you basically find out the cube root, otherwise it's very difficult. So let's discuss how we are going to solve the cube root. Okay, see, we are basically going to deal with the terms, means the 5-digit terms basically to find out the cube root. Okay, so before that we must know how first know the 10-digit cube root. Okay, so basically what is the things that you have to remember, आपको क्या चीज़ पहले remember करना है, पहले मैं वो लिख देता हूँ. ठीक है, first of all you know cube root of 1 cube is equal to 1. Okay, 2 cube is equal to how much? This is 8. 3 cube is equal to 27. 4 cube is equal to 64. 5 cube is equal to 125. Okay, then 6 cube is equal to 216. Okay, 216. 7 cube is equal to 343. 8 cube is equal to 512. And 9 cube is equal to 729. 10 cube is equal to 1000. Now you see that how we are going to use the shortcut tricks. Before that you must remember this. Okay, without remembering this thing you can't able to solve the questions. So let's discuss some of the questions before solving the tricks. Okay, so you remember one thing, you have to search the last digit. Okay, last digit. If any number I am going to take it as an example 1331. So first you have to see the last digit. What is the last digit? 1. So you remember one thing, any number which is at the end, जो भी नंबर लास्ट में होगा हमें स्पेशली वही नंबर को पहले देखना है. तो लास्ट में जैसे 1 है, तो अगर लास्ट में 1 होगा तो क्यूब रूट में भी हमें 1 ही लिखना पड़ेगा. अगर लास्ट में 2 होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका 10 से माइनस करके लिखना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू 8 मींस 10 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 8. यहाँ पे 3 का भी सिमिलरली यही करना, इसका 7 हो जाएगा. 10 माइनस 3 ऐसा 7 आएगा. 4 का 4 ही रहेगा. 5 का 5 ही रहेगा. 6 का 6 ही रहेगा. ठीक है, 6 का 6 हो गया. 7 8 का ऐसे ही होगा. 7 का भी चेंज हो जाएगा जगह. 7 का जो लास्ट में होगा तो ये 3 होगा. 8 होगा तो 2 होगा. कैसे होगा ये भी 10 माइनस 7 और ये होगा 10 माइनस 2 तो 10 माइनस 8. सिर्फ ये 2 का चेंज होगा. ठीक है, 9 का 9 ही रहेगा. ये क्या है, दिस इज द लास्ट डिजिट. कोई भी नंबर हमारा दिया होगा उसका बेसिकली हमें लास्ट डिजिट देखना है. अगर लास्ट डिजिट 1 रहेगा तो क्यूब रूट निकालने में हमें उसको लास्ट डिजिट 1 ही लेना पड़ेगा. अगर 2 होगा तो 8 लेंगे. ठीक है, बेसिकली यू सी हियर, बेसिकली आई एम गोइंग टू पॉइंट वन थिंग. चेंज किस में हो रहा है, चेंज इसमें हो रहा है. देखिए ये टर्म में चेंज हो रहा है. You always remember that if the last digit is 2, then we have to write 8. If the last digit is 8, we have to write 2. Okay, if the last digit is 3, we have to write 7. If the last digit is 7, we have to write 3. मतलब इतना ही चेंज हो रहा है. Okay, only this much is changing. बाकी सब constant है. बाकी सब constant है. Understood? Only the two number is changing. One is 3, another is 7. Okay, one is 2, another is 3. 1 is 7, another is 8. चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है, बेसिकली इसका एग्जांपल से सॉल्व हो सकता है. सो हाउ वी हैव टू सॉल्व, लेट्स सी. अगर हम ये ले लेते हैं, सपोज दैट इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस वन, इफ यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1 3 3 1. अगर हमें क्यूब रूट अगर किसी 3 का निकालना है तो हमें उसको 3 मतलब भाग में उसको बांटना है. जैसे कि ये पहले 3 लेंगे, फिर ये एक बचेगा, एक रहेगा. ठीक है, अब ये 3 में हमें ये डिसाइड करना है लास्ट टर्म क्या है. लास्ट टर्म 1 है,
तो इसका 1 का ऑपोजिट क्या है? 1 का ऑपोजिट 1 है, सो वी हैव टू राइट 1 का ऑपोजिट 1 होगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों टर्म्स को हमें नहीं देखना है, दिस टू टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड, ओके लीव इट। नाउ कम टू दिस टर्म, ये 1 है, अभी हमें इस टेबल पे देखना है 1 किसके बीच में पड़ता है। ओके, तो 1 8 और 1 के बीच में पड़ता है, और जो छोटा होगा हमें उसी लेना है, तो 1 ही छोटा है तो हमें 1 लेना पड़ेगा। नाउ यू सी दैट 11, ओके, द क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। कैसे होगा 11? 11 into 11 into 11 which is equal to 1331। समझ में आया? ये ऐसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी विल टेक लिटिल बिट हार्डर so that we can find it out। 15625, okay, 15625 ये ले लीजिए। अभी हमें ये इसको 3 में बांटना है, वी हैव टू डिवाइड इनटू 3, और जो बच गया उस दूसरे भाग में बट गया। अब ये 3 में से हम क्या देखेंगे? लास्ट टर्म, वी हैव टू लुक द लास्ट टर्म, विद द लास्ट टर्म इज 5 देन वी हैव टू टेक 5। ये दोनों को नहीं लेंगे, कट गया, ये 15 आ गया, 15। अब हमें इसमें देखना है 15 किसके बीच में आ रहा है? 8 और 27 के बीच में 15 आ रहा है, तो हमें क्या लेना है? 27 बड़ा होता है तो हमें छोटा वाला लेना है, जो 2 हमें लेना है, तो 25। इसका मतलब क्या हो गया? 25 इज द क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 25 होगा। इट इज 25 into 25 into 25 इज हाउ मच, व्हिच इज इक्वल टू, ये तो ये हो जाएगा आपको 15625। ठीक है, ऐसे होगा। This is the tricks you have to find out। I am going to give you little bit more example, okay, so that it will become easier for you। Now we have to take another example। जैसे कि ये चेंज हो रहा है ना, जैसे 2 और 8, 3 और 7, इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, like the 19683, 19683 ये ले लिया हम लोगों ने, 19683 ले लिया, इसको 3 भाग में, इसको ये भाग में कट गया, दिस इज क्यूब रूट। ओके, अब इसमें क्या है? लास्ट। अब मैंने क्या बोला था? 3 में लगा, लास्ट में इसका ऑपोजिट लेंगे 7, वी हैव टू टेक 7, ये दोनों को काट देना है। नाउ 19 किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 8 और 27 के बीच में 19 आ रहा है, तो छोटा वाला लेंगे 2, तो 27 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस। सो ये तरीका होता है। सो यू हैव टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ, and you tell me this process is easy or hard। You note down this, or you have to take the screenshot from this here, okay, so that I am going to give you one more questions। Write down the question, you have to find out the cube root of this 54872, 54872, इसका क्यूब रूट निकालिए। देखिए लास्ट में 2 है, 2 है तो चेंज होकर 8 हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, 2744 का निकालिए, 3 का आप क्या निकालिए? दूसरा, सपोज दैट आई एम गोइंग टू डू 1389261, 4 लीजिए। नाउ यू हैव टू फाइंड another is what? 24389, 24389, and thereafter you have to take 4093। You have to take any number, you have to take whichever is suitable for you, like this, 2164, you take it 2164, or you have to take some other number which will be suitable for you to find out the cube root, okay, like 3375, like this, okay, how many? 1 2 3 4 5, and you can tell me that can you able to find out the cube root of this or not. Take the screenshot and you can tell me, okay, so this is the part. Thank you so much।